मेरे तरफ देखो। कल जो सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स किए थे वो वापस एक बार घर में जाने के बाद देखा क्या? जो उस दिन हुआ है उसे पूरा करो, दैट इज योर ड्यूटी. Study means what? At least for my subject, whatever we take in the class, that you have to prepare on your own again. Samjha? Right. So the first type was what? Simple interest. What is the formula for simple interest? It's P into N into R over 100. And then tell me A is equal to what? A is equal to what? A is equal to P into bracket. Arshad tond paha. Okay. Look at me. Type 2, we are going to consider the compound interest. As a type 2, we are going to consider what? Compound interest. Now, in case of compound interest, what happens is A is equal to, tell me the formula. Revision batch, fatapat bolo. A is equal to P into bracket 1 plus R over 100 and that raised to now if this is true, tell me compound interest का formula क्या है? Now compound interest is equal to P into bracket 1 plus R over 100 that raised to N and that minus 1. Actually what did I do? I said A is equal to what? P plus I. उसमें से P को common निकाला. वो जो I के लिए चाहिए वो A minus P. So that is how I get the formula that the compound interest is equal to P into bracket 1 plus R over 100 that raised to N and that minus 1. समझा? तो लिखो. Write down both the formulae. Write both the formulae. Formulae are not only formulae. क्या है? क्या हो गया? Is that over? अभी ये compound interest में we require few shortcuts to be used on the calculator. Listen carefully. The one thing that I require is, suppose I want to do x raised to n, where that n is complete number, that is integer. I want that to be integer. Means what? Suppose if I want to do 1 plus 1.234 that raised to 15. 15 is a complete number. So whenever I want to get x raised to n where n is a complete number, what steps will you follow? I'll press x. Press x means x को press करो ऐसा नहीं क्या? Press x. And then you will have to press root. Correct है क्या? Correct है क्या? Revision batch. नहीं, मैं क्या करने का? Into equal to. So x then into equal to till counter should become n plus 1. तो अगर मेरे को 1.234 raised to 15 करना है तो मैं क्या करूंगा? 1.234 into keep on pressing equal to till the counter becomes 16. On the left top of your screen there is a counter. That counter should become 16, then you will get a power 15. समझा? करके मेरे को वैल्यू बोलो. और वैल्यू नहीं आती है तो अभी पूछो, क्योंकि ये दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर. हाँ, कितना आया? 20. हाँ, 23.4 427
5 7. In this chapter, you have to do the calculation up till 5 decimal places. Minimum. 6 लिया तो अच्छा होगा, 7 लिया तो और अच्छा होगा, लेकिन 4 लिया तो फिर डिसम्बर अटेम्प्ट. समझा क्या? तो इसलिए मिनिमम 5 डेसिमल प्लेसेस को तक जाना है अपने को. तो आया तो सबका 23 पॉइंट समथिंग. इज दैट क्लियर? टेक्निक इज क्लियर? वेरी गुड. ये this procedure is going to be required in every problem later on. However, if I want to get x raised to n, where n is a fraction, मतलब suppose if I want to get 1.234 and that raised to 4.75, ऐसा कुछ पावर मेरे को निकलना है, ऑड पावर, फ्रैक्शनल पावर. तो फिर व्हाट इज द प्रोसीजर? एट द फर्स्ट स्टेप प्रेस एक्स. प्रेस एक्स. अभी ऐसा मत कहो कि कैलकुलेटर पर एक्स ही नहीं है तो कैसे प्रेस करेंगे. ऐसा इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि एक्स है तुम्हारे पास और प्रेस करो. अभी प्रेस रूट 12 टाइम्स. ये रूट कितने बार प्रेस करेंगे? 12 टाइम्स. Then you would say -1 is equal to, subtract करो 1. Then you will have to multiply by that power n, whatever power you want. Whatever power you want, that उसे multiply करो. Then add 1 equal to, and then at the last step press into equal to into equal to into equal to into equal to 12 times. Mind well, it is not into equal to equal to equal to. It is into equal to into equal to into equal to. ऐसा है. कितने बार करना है? 12 बार करेंगे तो मिलेगा क्या? हो गया. हाँ, तो अब ये 1.234 रेज टू 4.75 निकाल के मेरे को वैल्यू बोलो. और जिसको नहीं आता है ना, प्लीज एक मिनट, वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट फ्रेंड्स हियर ऑनवर्ड्स. अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज स्टॉप मी देयर, आस्क इट, गेट इट अंडरस्टूड, सो दैट फर्दर प्रॉब्लम्स विल नॉट बी डिफिकल्टीज. समझा क्या? तो नहीं आया तो नहीं बोलो ना, उसमें क्या है? उसमें क्या है? उसमें रस होता है ना, उसात रस असतो ना. Do the calculation independently on your own, and then whatever value you get, tell me what that value is, please. 2.7 71459. 5 डिजिट तक कम से कम लिखना है. 6 डिजिट लिखेंगे तो और अच्छा होगा. जितने ज्यादा डिजिट्स लिखेंगे उतना आंसर एक्यूरेसी में ज्यादा होगा. समझा? एनीवे, नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. देखो मेरे तरफ, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीरियड n. So whenever you have to find the period n, to find the value of n, जब तुमको लगता है n, तब क्या करने का है वो देखो. You will get something like this: a is equal to b raised to n. You will get like this. We'll discuss it whenever required, but at present just write down the procedure. If you have a is equal to b raised to n, and I have to determine n is what. a पता है, b पता है. तो फिर what will I do? I will say log of a over log of b will be equal to n. Log a over log b will be the value of n straight away. But the question arises, how do we find the value of log a? How do we find the value of log a? किसी भी नंबर का log निकालना है तो क्या करेंगे? Press a. Then press root 15 times. अभी 12 टाइम्स नहीं है, अभी 15 टाइम्स है. अभी ज्यादा बार करना पड़ता है, n निकालना है ना.
period. Abhi, then you will have to say -1 equal to, and then you have to divide by a very specific number, 0.00070271718. अभी जो पहली बार ये सब सीख रहे हैं ना, उनको लगेगा कि यही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये नंबर तुम बार बार कहते रहेंगे तो आज रात को क्या करने का, घर को जाने के बाद यही कहते रहने का, 0.00007071718, 0.0000701727178, 0.00007027178. ये जब जितने ज्यादा बार कहेंगे, चैंटिंग करेंगे ना, उसका वो नंबर आपसे स्पॉन्टेनियसली आएगा जब लगेगा तब. So for example, if I want, suppose I had 2 is equal to 1 immediately. तो फिर मैं वो n निकालने के लिए क्या करूं, मेरे को बोलो. These shortcuts are going to make your life easier. These shortcuts are going to make your life better in the examination hall. Tell me, what should I do? Then log 2 divided by log of 1.11 is the value of n. क्या है ये समझ गया ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी. और ये नहीं समझा तो लगेगा कि ये डिफिकल्ट है. अभी मेरे को बोलो, हाउ वुड यू फाइंड log 2? असुदे, अभी log 2 निकलना है मेरे को. मेरे को log 2 निकलना है, तो मैं क्या करूं? प्रेस 2, फिर क्या करूं? Press root 15 times. Then you will have to say -1 equal to. Then you have to multiply by whatever power, divide by 0.00007027178. फिर तुम्हें log 2 मिलेगा. उसी तरीके से 1.11 का log निकालो. तो ये log 2 कितना है बोलो मेरे को, आता बोल गो. 0.3010225, that's okay, डिवाइडेड बाय ये 1.11 का log इसी तरीके से निकालो. 0.04532. ठीक है. एक बात मेरे तरफ देखो और समझने की कोशिश करो. अभी टाइम वैल्यू हाथ में लिया है ना, उसको पूरी हर एंगल से उसे पूरा करना है. उसके एमसीक्यू होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस आई विल गिव टू यू, दोज ऑल विल हैव टू बी सॉल्व्ड. जितने भी लास्ट 20-30 क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, उनके सबके क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको दूंगा, एंड वी विल सॉल्व दैट. ओके, तो करना है तो पूरा करना है. ऑलराइट, एक चैप्टर को पूरा करो. मैं आपको बोलूं क्या मैथ्स में पास होना कितना आसान होता है, एंड आई मीन इट, श्योरली ये होता है. टाइम वैल्यू करो, 10 मार्क पकड़ के चलो, 12 होता है लेकिन 10 पकड़ के चलो. एमसीटी एमडी 20 होता है, चलो 18 मार्क ही पकड़ के चलो. 18 + 10 28. लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का होता ही है, क्योंकि वो अलग सेक्शन है, मतलब एक कंपलसरी वो 20 मार्क्स होगा ही. तो कितना हो गया? 48. प्लीज, इंडेक्स नंबर बहुत आसान चैप्टर है, ये है 4 मार्क्स ऐड करो. इस तरीके से ऐड करेंगे तो देखते ही देखते टोटल हो जाता है 60-70, और 70 में से फेल हो ही नहीं सकते. समझा क्या? तो दिस इज वेरी सिंपल, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कीप एज अ सीक्वेंस. जो ज्यादा मार्क्स वाले वेटेज वाले चैप्टर्स है उसको पहले लेंगे और उसको पूरा करेंगे. ऐसा नहीं कि आधी दाढ़ी करी थी और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं. आधी कटिंग की है कि नहीं? हाँ, तो क्या आया, क्या आंसर? एन कितना आया? पहले एन बोलो. 6.64 ईयर्स. बट 6.64 ईयर्स का मतलब होता है 6 years कंप्लीट, एंड 0.64 into 12 these many months. So roughly speaking 7 months. This is how the calculation will be done. Okay?
7.6 ना, तो 8 मंथ्स लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन चॉइसेस विल नॉट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. मतलब 6 years एंड 7 months का भी चॉइस है और 6 years 8 months का भी चॉइस है, ऐसा नहीं होता है. तो 7 8 उसके रफली स्पीकिंग वो ठीक है. समझा? ऑलराइट. एंड द लास्ट कैलकुलेशन दैट यू रिक्वायर इज, एक मिनट मेरे तरफ देखो. The calculation that you require is, suppose you have to find the value of R. Whenever you have to find the value of R, whenever you need to find the value of what? R. You get an equation like A is equal to 1 plus R over 100 that raised to N, where you know A, you know N, and R is what that you need to find. N you know. तो मेरे को आर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एन निकालना है तो जॉब इज वेरी सिंपल. तो करेंगे क्या? ये जो इधर एन है उसको इधर लेके आओ ऐसा. लेकिन ये जब इधर आता है तो 1/, बन के आता है. इधर का 2 उधर जाएगा तो 1/2 होता है कि नहीं? लाइक दैट एन उधर से इधर आया तो क्या होगा? पावर होगा 1/n. So in that case what will happen is A raised to 1/n is the value of 1 plus R over 100. अभी सवाल ये होता है कि ये A raised to 1/n कैसे निकालेंगे? मैं A raised to 1/n निकालने के लिए क्या करेंगे? A. क्या बोलती तू? सुन, आती के ये प्रॉब्लम करायला. पहले क्या प्रेस करेंगे? A. फिर क्या करूं मैं? रूट 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 12 times, जैसे पहले किया था वैसे ही. देन subtract 1 and then small little change. Now you have to divide by n. Actually you have to multiply by 1/n, but multiplying by 1/n मतलब dividing by n. That is how you have to divide by n. And then you have to add 1. And then into equal to will be how many times? 12 times. ये समझा बड़ा? करो, लिखो. हो गया? For example, if I tell you, 2 is equal to 1 plus R over 100 that raised to 7. I want you to find the value of R. हाँ, अभी सोच समझ के करो. नहीं समझा तो मेरे को बोलो. आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इंडिविजुअली एंड पर्सनली इफ somebody has not understood, because I know there are students in the class who were not for the earlier attempt with me. So some techniques, some distinct, definitely shortcuts are going to be new to somebody, some people. तो नहीं आया तो नहीं बोलो, चिल्लाओ. बिल्कुल साइलेंट नहीं बैठने का, बोल बड़बड़ करते रहो. हो गया क्या बयान? हाँ, तो फिर अभी जरा मेरे तरफ देखो. होगा क्या? 2 raised to 1/7 करना पड़ेगा. 2 raised to 1/7 is equal to 1 plus R over 100. Now 2
root 12 times. That minus 1. Now divide by 7. Add 1 into equal to 12 times. तो ये 2 raised to 1 upon 7 कितना आया? 1.10409 is equal to 1 plus r over 100. तो फिर ये 1 को इधर लाया and therefore 1.10409 minus 1. This is r over 100. So 0.10409 multiplied by 100 will be the value of r. So that r happens to be 10.4%, 41% जो भी है. समझा? This is how you find the value of what? n. और एक बात लगती है बार बार, वो ऐसी है कि मेरे को समझो करना है 1/a. अगर मेरे को निकालना है 1/a, if I want to get 1/a, then what will I do? I'll just press a and then say upon equal to. For example, if I do 2 upon equal to, I'll get 1/2, that is 0.5. करके देखो, 2 upon equal to करेंगे तो 0.5 मिलता है क्या? देखो, मिलियो कहीं 0.5 मिला क्या? तो 1/a जब करना है तो क्या करना है? a upon equal to. समझा? With this, we can directly hit upon the problems. With this, we can directly consider solving the problems. अभी इसमें एक बात होती है, जरा समझने की कोशिश करो. इसमें एक बात होती है कि कभी कभी ये कंपाउंडिंग 1 ईयर के बाद नहीं होता. कंपाउंडिंग सिंस 6 months के बाद होता है. Means what? You deposit 100 rupees. Bank will compute interest after 6 months. Will add to 100. And then whatever amount you will get, on that amount it will find the interest for the second half year. समझा ना? तो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हर 1 साल के बाद होने के बजाय वो अगर हर हाफ ईयर के बाद मतलब 6 months के बाद होता है, तो दैट इज कॉल्ड द हाफ ईयरली कंपाउंडिंग. दैट विल बी नोन एज व्हाट? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग. और यही अगर 3 months के बाद होता है तो फिर क्या कहेंगे? क्वार्टरली कंपाउंडिंग. और ये हर मंथ में होता है तो इट विल बी द मंथली कंपाउंडिंग. बाकी प्रोसीजर वही, फॉर्मूला वही. तो क्या करेंगे? राइट दिस एज अ टेबल दैट इन केस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग, लिखो in case of yearly compounding, in case of yearly compounding, period and rate of interest. If you have the yearly compounding, then you have n years ka time. N years. You have the type of how much? N years. And the rate of interest we take is what? R% per annum. But अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो भाइयों क्या करेंगे बोलो? 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 ईयर में कितने हो गए? 4. 3 ईयर में कितने हो गए? तो number of half years will be more than number of years, ना? And therefore, in this case, in half years, it will be 2.5 years. पीरियड को मल्टीप्लाई करो. क्या कहते रहने का रात भर? पीरियड को मल्टीप्लाई करो. अभी मेरे का तरफ देखो और बोलो कि अगर पूरे ईयर के लिए R% है तो हाफ ईयर के लिए कितना होगा? आधा ही होगा ना? And therefore, for half year, it will become R/2% per half year. So period is multiplied and rate of interest is divided. Rate of interest कम होगा ना? 1 साल के लिए 10% है तो फिर हाफ ईयर के लिए 5% ही होगा. और 1 ईयर में 1 ईयर होता है पर 2 हाफ ईयर होते हैं तो पीरियड इज मल्टीप्लाइड. इट्स वेरी सिंपल.
Then my question to you is tell me what will happen in quarterly compounding. अभी ये सेम लॉजिक होगा. एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? मेरा एक भी नहीं होता है. एक ईयर में मेरा एक भी क्वार्टर नहीं होता है. क्या तुम्हारे कितने होते हैं? 4 होते हैं. अरे वाह. तो इट विल बी 4 in quarters. और जो पूरे R% है पूरे ईयर के लिए, वो क्वार्टर के लिए कितना होगा? It will be R/4% per quarter. And then in the monthly compounding, what will happen? In 1 year has 12 months. So 2 years will have 12 into 2, 24 months. So it will become 12 months. And then this will be like R/12% per month. तो ये जो चेंजेस होते हैं उनकी तरफ केयरफुली देखो. समझा? अभी होता क्या है देखो. 6 मंथली अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो ईयरली जो कंपाउंडिंग करते हैं उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. क्वार्टरली करते हैं तो और ज्यादा मिलता है. मंथली करते हैं तो और ज्यादा मिलता है. और रोज रोज करते तो और ज्यादा होता है. डेली करते हैं तो. समझा क्या? तो इसलिए when the compounding is done half yearly or quarterly or monthly, the rate of interest happens to be larger than the rate of interest that you have in yearly. That larger rate of interest is called the effective rate of interest. समझा? That larger rate of interest is known as what? Effective rate of interest. And the rate of interest that is specified by the bank, that is called the nominal rate of interest. That is known as what? Nominal rate of interest. So what is effective rate of interest? Larger rate of interest that is received because compounding is not done yearly but is done half yearly, quarterly or monthly. समझा? तो give the heading. तो ये second type में हम ये तीनों points को cover कर रहे हैं. Effective rate of interest. It's not defective, it is what? Effective. Effective rate of interest E. देखो, effective rate of interest E. The given rate of interest. The given rate of interest is called the nominal rate. Is the nominal rate. कहने के लिए बोला है nominal rate. The given rate of interest is known as what? Nominal rate. And the larger rate of interest, higher rate of interest, due to compounding, half yearly, quarterly, monthly, is known as the effective rate of interest. अभी आप फेल हो गए थे भूल जाओ. क्या स्टडी एंजॉय करो. डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट स्टे फोकस्ड. नाउ जस्ट लिटिल व्हाट सिंसियरिटी. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सीरियस होने के बजाय आपको ये डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा कि एक भी लेक्चर मिस नहीं होगा, वेदर यू आर ऑफलाइन और यू आर ऑनलाइन. एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए. नंबर 2, जो लिया है उसकी रिवीजन करना है बस. और मैंने कितना टाइम स्टडी करने को बोला है आपको? 2 आवर्स. आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा और आधा घंटा, बस हो गया. उसे ज्यादा होगा भी नहीं. आज 4 घंटे करेंगे, फिर 4 दिन कुछ नहीं करेंगे. ये इसका क्या फायदा है ना? तो रोज करो. अभी ये समझा क्या? Now my question to you is, tell me, how do we find the effective rate of interest? At the first step, find A is equal to P into 1 plus R over 100 that raised to N. First of all, you will have to find A is equal to P into 1 plus R over 100 that raised to what? N. As the second step, you will have to find what? Interest. And how do we find the interest? Tell me. A minus P.
ये मिलेगा इंटरेस्ट. And then effective rate of interest is equal to interest divided by principal multiplied by n years. अभी ये n half years नहीं लेने का है, n years लेने का है. And that multiplied by 100. That multiplied by 100. We saw the questions, but we are just collecting what the formula are required, what the procedures are required. हो गया. अभी कभी कभी क्या होता है कि if not given, then I will take n will be equal to 1 year. कुछ नहीं दिया है तो 1 year पकड़ो. And then consider p is equal to 100. If कुछ भी नहीं दिया है तो take p is equal to what? 100. If not specifically given, then take n is equal to 1 year and p is equal to 100. In that case, what happens? This effective rate of interest will be equal to just a simple little procedure. It will become 1 plus r over 100 that raised to n and that minus 1. It will become a very simple formula. But कभी कभी उसमें भी क्या होता है कि r upon 100 is denoted by I. R upon 100 is denoted by what? I. So that formula will become 1 plus I raised to n minus 1. This formula you will find in the module. But ये formula specifically n is equal to 1 year है और p is equal to 100 है तो ही apply होता है. अगर ये अलग है तो फिर ये ऊपर वाले स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. मॉड्यूल में दिया हुआ फॉर्मूला स्पेसिफिक सिचुएशन का है और ये जो लिखा है वो जनरली कौन से भी वैल्यूज के लिए well, and therefore don't get misled by the formula given in the module. That is not wrong formula, but that is only for the specific situation. In general, we have to follow these 3 steps. तो लिखो बाळांनो. लिखा क्या? In case if not given, n is not given, take n equal to 1 year and p is not given, then take p is equal to 100. And then you can use the simple little formula 1 plus I raised to n and that minus 1. Is that clear? Fantastic. And the last point, and then we'll turn on to the problem solving. And that last point that you have to notice is that if there are changing rates of interest, if there are
चलो लिखा, लिखा है क्या, चेंजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1 for the period N1, rate of interest is R2 for the period N2, etc. Then what will I do? A is equal to P into bracket 1 plus R1 over 100 that raised to N1, 1 plus R2 over 100 that raised to N2. You have to make the chain of terms. You will have to make the chain of terms. वादा मैंने तो आपसे किया है कि जो क्लास में लेंगे उसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आ सकता, और कभी भी आया नहीं है 35 इयर्स के मेरे पूरे टीचिंग की हिस्ट्री में, क्योंकि वी डू एवरीथिंग ना, वी प्रिपेयर एवरीथिंग. समझा? लिखा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, for example, if I tell you that you make an investment, you invest ₹1,000 at 6% per annum for 2 years, 7% per annum for further 3 years, then how much will you receive? How much amount will be received? How much amount will be received? करो बड़े, दिया है हमने आपको वक्त, जो ऊपर नोट लिखा है उसका एग्जाम्पल है. तो कैसे लिखेंगे ये इक्वेशन को? हाउ वुड यू प्रेजेंट दिस? व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर? A would be equal to 1000, 1 plus 6 over 100 that raised to 2, then 1 plus 7 over 100 that raised to 3. So that will be equal to 1000 into 1.06 raised to 2. ये समझा कि आपको 1.06 कैसे आया? 6 upon 100 is 0.06. 0.06 plus 1 is 1.06 that raised to 2 and 1.07 that raised to 3. तो अभी ये कैसे करेंगे मेरे को बोलो? कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे? 1000 into 1.06 into 1.06 2 times into 1.07 into 1.07 into 1.07. So tell me how much is that? Final answer? 1376.45 आया है क्या? 4546 is all right, no problem. इसका मतलब ₹1,376 and 45 पैसे. हो गया क्या बाळांनो? And the concept next to that is a depreciation. This would be a depreciation. अभी तुम मेरे को बोलो, डेप्रीसिएशन के टाइप्स कितने होते हैं जो तुम्हें पता है? 2 टाइप्स होते हैं. एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड. दैट स्ट्रेट लाइन मेथड इज लाइक सिंपल इंटरेस्ट. That straight line method will be like what? Simple interest. But whenever we talk about depreciation in this chapter, we will be talking about the reducing balance method or WDV. समझा?
मतलब द डेप्रिसिएशन फॉर द सेकंड ईयर विल बी कॉम्प्यूटेड ऑन द रिमेनिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. नए वैल्यू पे निकालना है डेप्रिसिएशन. दैट विल बी लाइक द कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. A is equal to P into bracket 1 plus R over 100 that raised to N. Tero. I said compound interest. तो यहां क्या होता है? We receive R. The interest is earned. Interest is gained. And therefore ये जो R है वो पॉजिटिव लिया जाता है. But depreciation में क्या होता है कि you lose the value ना. आपने कैलकुलेटर लिया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर अभी सेकंड अटेम्प्ट में आप उसको यूज करेंगे. किसको? कैलकुलेटर को. वो भी नहीं हुआ, और वो समझो तुमने जून में ऐसे डिसाइड किया कि अभी नहीं देने का अटेम्प्ट. अभी ये कैलकुलेटर का क्या करेंगे ना? तो वो कैलकुलेटर उस बैच के नए स्टूडेंट को अगर तुम बेचने को जाएंगे तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा या कम पैसा मिलेगा? वाई कम पैसा? एक्चुअली ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेटर एक्सपीरियंस्ड हो गया ना. 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस हो गया कम से कम, है कि नहीं? पर ऐसा होता नहीं है. वो कैलकुलेटर नीचे गिरता है, उसके ऊपर पानी पड़ता है और कुछ कुछ होता है. एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटर विल बी रिड्यूस्ड. दैट रिडक्शन इज नोन एज डेप्रिसिएशन. तो वहां आर क्या होता है? यू लूज दैट इंटरेस्ट. आई मीन दैट वैल्यू वॉट एवर डेप्रिसिएशन इज देयर, दैट्स अ लॉस. एंड बिकॉज इट इज अ लॉस, depreciation and compound interest concepts will be the similar. The formula will be A is equal to P into bracket 1 minus R over 100 that raised to N. समझा? A is equal to P into bracket 1 minus R over 100 that raised to N. Where what is the value P? जो आपकी परचेस प्राइस होती है, दैट प्राइस इज नथिंग बट पी, प्रेजेंट वैल्यू. दैट प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ना. आपने एक मशीन लिया, वो 1 लाख रुपए में लिया, तो 1 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू हो गई. फिर उसको यूज किया. यूज कितने साल के लिए किया? N years is called the effective life of the machine. It is the effective life, wife नहीं, life of the machine. समझा? R% per annum is the rate of depreciation. The government income tax act of India will define what the rate of depreciation will be allowed. For example, on this iPad and all that now is 40%. वो फर्नीचर है तो 10%, व्हीकल्स है तो 15%. ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन होता है. बट इट्स ओके, वी आर नॉट गोइंग टू बी कंसर्न विद दैट इन द रिवीजन बैच. ये रेगुलर बैच में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि उसकी जरूरत क्या होती है, डेप्रिसिएशन लगता कहाँ है. पर अभी वो छोड़ दो अभी. और फिर यू गेट व्हाट? ए. And that A is the depreciated value. That A is the depreciated value. This is also called scrap value. मतलब at this value you sell the machine. आपने मोटरसाइकिल लिया, यूज किया 4 साल के लिए, उसके बाद उसको सेल किया, तो वो मोटरसाइकिल का इफेक्टिव लाइफ आपके लिए कितना हो गया? 4 साल का. फिर जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द स्क्रैप वैल्यू. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. ये सेम है, फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट ना? और फिर डेप्रिसिएशन क्या होगा बोलो? अगर मैंने तुमको पूछा कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन means what? Depreciation means reduction. So depreciated value मतलब reduce होने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो. और depreciation का मतलब क्या? मतलब वैल्यू रिमेनिंग, वैल्यू डिक्रीज, रिडक्शन कितना हुआ है, कितने का डिक्रीज हुआ है, कितने का रिडक्शन हुआ है.
So that you can find by considering P minus A. Mind you well, P is greater than A. क्योंकि वैल्यू कम 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 होती है ना, तो P will be larger than A. तो P minus A is the depreciation. Depreciation का मतलब होता है रिडक्शन, और रिड्यूस होने के बाद कितना वैल्यू रहता है वो हो गया A. समझो तुम्हारे पास 10 रुपए है और तुमने मेरे को 8 रुपए दे दिया, तो 8 रुपए तुम्हारे लिए हो गए डेप्रिसिएशन, और रही कितनी वैल्यू 2 रुपए, वो हो गया A. ये फर्क समझो, समझा? एक छोटा सा पॉइंट है, समझो मैंने ऐसा कहा, सपोज इफ आई कंसिडर that the value depreciates by 10%. And the value is depreciated to 10%. Very important. People confuse here. Value depreciates by 10% and value depreciates to 10%. कहां कहां गलतियां होती है, कहां कहां मिस्टेक्स होती है, दैट आई परफेक्टली नो, दैट आई एम गोइंग टू मेक अ पॉइंट आउट ऑफ देयर. अभी वैल्यू रिड्यूस बाय 10%, इसका मतलब होता है रिडक्शन इज 10%. इसका मतलब है रिडक्शन इज 10%. सो P इज P and value remaining will be 90%, but 90% means 0.9 of P. रिडक्शन हो गया 10% से, तो रिमेनिंग वैल्यू इज 90% की नहीं, तो A will be equal to what? 0.9. और when I say reduce to 10%, मतलब रिमेनिंग वैल्यू इज 10%, रिडक्शन इज 90%. हो ना? तो रिडक्शन इन दिस केस विल बी 90%. So P will be equal to P and A will be equal to 0.1 P. 10% of P. ये by and to, this is not a problem of mathematics, but this is the problem of English language. It is a linguistic problem. But if you are not clear with the wording, then how can I find answer? So by matlab that much reduction, and to matlab reduced remaining value. हो गया क्या? हो गया? Is that over? So if we solve the problems, will you be able to do the calculations now? So there we go to the module. मॉड्यूल आया क्या तुमने? कल बोला था ना जेरोक्स रखो. बावट काय म्हणायचं? I open the exercise B. Exercise 4B. Read the problem. एक एक प्रॉब्लम की तरफ देखो. हमें जल्दी नहीं है, हमें क्विकली उसको फिनिश नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर नॉट गोइंग टू लिंगर एट एनी स्टेज. हमको कैजुअल नहीं बनना है, टाइम का मैनेजमेंट होना ही चाहिए. रीड. P is 1000, R is 5%, N is 4. How much is the amount and how much is the compound interest? दोनों भी पूछा है. रीड. पहले लिखो क्या क्या दिया है. आप करेंगे या मैं करूं? आप करेंगे या मैं करूं? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. Even practice cannot make woman perfect. चिड़ो.
Once we finish this chapter, I will be taking the multiple test on this chapter. And test has to be given with full preparation, with utmost sincerity, utmost focus. हो गया क्या? तुला जायचं का? तुलाही जायचंय का? हो गया क्या? तो look at me now. P is given, R is given. अभी एक मिनट मेरे तरफ देखो, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे करना है यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर है. 1000 into 1 plus 5 over 100 that raised to 4, so that is equal to 1000 into 1.05 that raised to 4. जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं ना लेक्चर्स को, वो केयरफुली देखेंगे कि कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है. Others know it. So how will you do 1.505 raised to 4? 1.05 into equal to till counter becomes 5. Till the counter should become now what? 5. Then you will get the power 4. And when you multiply directly by 1000, you will get what A is there. So tell me how much is A? 1, 1, 2, 1, 5.5. आता 0.5 और 0.50 एक ही होता है, तुमको पता है क्या? हाँ. तो फिर ये हो गया A. एंड देन टेल मी इंटरेस्ट कितना हो गया? 1215.5 माइनस 1 to 1.5.5. समझा क्या? कैलकुलेशन की तरफ क्लोजली देखो. आपने अपने कैलकुलेशन स्पीड को धीरे धीरे इंप्रूव करो, क्योंकि एक मिनट में क्वेश्चन पूरा करना है तो टाइम मैटर्स. टाइम इज द एसेंस ऑफ एमसीक्यू स्टाइल ऑफ एग्जाम. हो गया? वेरी नाइस. बट क्या है, वो आसानी है ना, उसमें क्या है? तो फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो. मैंने आपको कल बोला था कि इसके जेरोक्स रखो पास में. तुम्हारे ध्यान में नहीं होगा, वो करो. 100 will become after 20 years at 5% compound interest amount of. मतलब निकालना क्या है? निकालना क्या है? A. दिया क्या है? P. यार क्या होते? करो जल्दी जल्दी. हाँ, तो A will be equal to what? A will be equal to 100. 1 plus 5 over 100 that raised to 20 is equal to 100. 1.05 that raised to 20. तो that 1.05 that raised to 20 कैसे निकालेंगे? 1.05 into equal to till counter becomes 21. And when you multiply by 100, you will get what you want. आया क्या? आ गया क्या? ए आया. ए कितना आया? 265.5 आया क्या? 265.32 आया. तो इन दैट केस इतना डिफरेंस है तो नन ऑफ दिस मार्क करेंगे. अगर तुम्हारा 51 आता या 49 आता तो यू कैन मार्क 50. So I will not mark C choice in that case. I will mark it what? D choice. But I think in the new prints of the module, they have made it like this 38. तो शायद तुम्हारे मॉड्यूल में वो 38 जो आता है वो होगा.
हाँ, तुम्हारे मॉड्यूल में क्या है बोलो? 265 पॉइंट, अच्छा वो इंटरेस्ट हो गया, 165.33 दिया है ना। हाँ, तो यहाँ इस मॉड्यूल में करेक्शन चाहिए था, बट दैट्स ओके। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया तो आई विल मार्क नन ऑफ दिस, लेकिन अगर वो 0.33 है तो दैट इज करेक्ट। बट देन दे आर फाइंडिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी, सो इट विल बिकम 165 पॉइंट, बोलो कितना? 33। ये इंटरेस्ट हो गया। अभी उन्होंने इंटरेस्ट पूछा है क्या? नहीं पूछा है, तो पूरा क्वेश्चन में ही उन्होंने कंफ्यूजन किया है। दे आर आस्किंग यू 100 विल बिकम व्हाट, 100 विल बिकम व्हाट, तो 100 विल बिकम व्हाट मीन्स ए इज आस्क्ड नॉट इंटरेस्ट, 100 विल बिकम व्हाट। तो तुम्हारा आंसर आया है क्या? 265 आया है, तो फिर 265.33 शुड हैव बीन द आंसर, not 165.33, because they are asking you it will become what, means a will be what, they are not asking you the interest, they are not asking what is the interest on this, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अरे यहां का वर्डिंग पढ़ो ना, 100 will become what। अच्छा तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन ही अलग है तो ठीक है, लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 265.33। हाँ, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पूछा है तो फिर 165, दैट्स करेक्ट। वो मॉड्यूल के क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंडेंट है, समझा? वेरी नाइस। तो फिर अभी ये तीसरे के लिए मेरे तरफ देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 3% पेएबल हाफ ईयरली। हाँ, जरा अभी मेरे तरफ देखो, तो फिर क्या होगा? यहां प्रिंसिपल दिया है क्या? नहीं दिया है। पीरियड दिया है क्या? नहीं दिया है। तो वी एज्यूम इट इक्वल टू व्हाट, 1 ईयर। तो अभी मेरे को बोलो कि अगर ये n 1 ईयर है तो हाफ ईयर में कितना होगा? 2 हाफ ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है 3% पर ईयर, तो वो हाफ ईयर कितना होगा? 1.5% पर हाफ ईयर, समझा? तो फिर अभी डायरेक्ट फॉर्मूला जो मॉड्यूल में दिया है वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीजर यूज करो। क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, E इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5 ओवर 100 that raised to 2 and that minus 1, ये यूज किया तो भी चलेगा। Why? Because n is 1 year। करो तो that means it will become 1.015 square minus 1। करो कितना आया? 3.0225 आया क्या? मतलब सी चॉइस आया क्या? ये समझा क्या तुमको? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बिकॉज पी इज नॉट गिवन एंड एन इज नॉट गिवन, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला स्ट्रेट अवे। बट हैड दिस नॉट बीन 100, p had been given to be different than 100, then I would have to go to the procedure that we have written। हो गया थर्ड क्वेश्चन। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन के लिए अभी मेरे तरफ देखो, अ मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट 20%। व्हाट इज 20%? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख? P। स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। व्हाट इज 30,000? A। तो अभी A दिया है, P दिया है, R भी दिया है, और N नहीं म्हणायचं, N निकालना है, समझा क्या? तो फिर N निकालना है तो क्या प्रोसीजर तुमको बोला है मैंने? log A अपॉन log B, दैट इज द प्रोसीजर वी नो। तो फिर करो,
तो फिर करो, हाउ विल आई डू? ए दिया है 30,000, दिस इज इक्वल टू पी दिया है 1 लाख, दैट इंटू 1 माइनस 20/100 दैट रेज टू n। अभी ये 1 लाख आएगा नीचे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दिस इज इक्वल टू 0.8 रेज टू n। चेक। अभी ये 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये कितना होता है? 0.3। तो 0.3 इज इक्वल टू 0.8 रेज टू n। तो log ऑफ 0.3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.8 वुड बी द वैल्यू ऑफ n। अभी सवाल ये होता है कि ये log कैसे निकालेंगे? तो रूट 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 15 टाइम्स that minus 1 and divide by 0.00070271778। तो तुम्हें लॉग पर ये निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, और दोनों लॉग निगेटिव मिलेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। पीरियड कभी निगेटिव होगा क्या? नहीं होता है, पर दोनों निगेटिव है ना। कितना लो? 0.3 का लॉग कितना आया? माइनस 0.52285 and divided by minus 0.0969 समथिंग। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो n कितना आया? 5.39 years, roughly speaking 5.4 years। तो B choice will be marked। समझा क्या बात? कहो ना समझ गया। ठीक है, तो फिर अभी 5th क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो। A is 1000, A दिया है, N is 2 years, rate of interest is 6% per annum, but this is compounded half yearly। हाफ ईयरली तो कन्वर्जन करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा ना। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट P? अभी पहले मेरे को बोलो कि N क्या है? 2 years, but 2 years means how many half years? बोलो पटापटा। 4 half years। Then rate of interest given is 6% per annum, but then half year के लिए क्या होगा? 6/2, that is 3% per half year। तो फिर A दिया है 1000, that is equal to P 1 plus 3/100 that raised to 4। So 1000 is equal to P and 1.03 that raised to 4। तो अभी ये नीचे आता है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलूं क्या, अभी नहीं लगेगा, लेकिन पास हो ही गए तो फिर इंटरमीडिएट में लगेगा कि ये जो हम P निकालते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। इसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंट, जो अकाउंट्स में लगता है डिस्काउंटिंग। समझा क्या? फिनेंशियल मैनेजमेंट में ज्यादा लगता है अकाउंटिंग से। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब आज की वैल्यू क्या है, मेरे को कल मिलेंगे 10 रुपए, पर आज की वैल्यू उसकी क्या है? कम होगी ना यार, हो कि नहीं? देखो आज मेलोडी चॉकलेट मिलता है 1 रुपए में, वही मेलोडी चॉकलेट 10 साल के बाद मिलेगा 5 रुपए में। तो उस समय के 5 रुपए मतलब आज का 1 रुपए हो गया ना। तो वो आज का 1 रुपए मतलब प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। आगे से फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्काउंटिंग। निकालो बाळांनो।
हो गया? हाँ, तो फिर 1000 डिवाइडेड बाय दैट P विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट? 888.8. 888.49. हाँ, तो 49 मतलब 5. And yeah, module that I am using seems to be the old module, but in the new edition they have corrected it. That's fine. We are not interested in A choice, B choice, C choice, D choice. We are interested in what the procedure is to get the answer. आंसर मैच होता है तो फिर एबीसीडी कोई मायने नहीं रखते. हो गया? और इस तरीके से गलत क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो यू शुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज द मार्क्स विल बी गिवन फ्री ऑफ चार्ज. समझा क्या? कुछ नहीं करेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे. तो ऐसे दुआ करो कि काय थे 100 क्वेश्चन सब डिफिकल्टी रॉन्ग ही आएंगे. डिफिकल्ट नहीं, रॉन्ग आएंगे. समझा क्या? तो 100 आउट ऑफ 100. समझा क्या? पर ऐसा होता नहीं है. आईसीआई हैज गॉट अ वेरी 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 सिस्टमैटिक वे ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द पेपर एंड आंसर्स. तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. आता 1 मिनट मेरे तरफ देखो. पॉपुलेशन ऑफ टाउन, गाउन नहीं, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%. अभी ये जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है ना, दैट इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जो पहले हमने लिखा ना जो प्रोसीजर्स, वहां लिखो कि ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. ओनली थिंग इज दैट आर इज माइनस. अभी पॉपुलेशन भी बढ़ता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही बढ़ता है. क्यों? क्योंकि आज 100 लोग हैं, उनको 10 बेबीज हो गई, तो दैट इज लाइक इंटरेस्ट ना. इंटरेस्ट लिया इसलिए बेबी हो गई ना. तो नया पॉपुलेशन हो गया 110. दैट न्यू पॉपुलेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर बर्थ ना. सो इट्स लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. समझा? तो ओनली थिंग इज दैट वी से रेट ऑफ ग्रोथ, वी डोंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट. बाकी सब प्रोसीजर वही है, करो. काय होते? पॉप्युलेशन वाढते का? करो बाद दो. तो A इज इक्वल टू P दिया है कितना? पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 2%. नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. हाँ जरा 1 मिनट मेरे तरफ देखो. राइज इन पॉपुलेशन इज 40% ना. तो इसका मतलब क्या? अगर मनी ग्रोज बाय 40%, क्या करना है? कल देखा है हमने. तो क्या कहेंगे? P इज P एंड A इज, बोलो, 1.4p. पॉपुलेशन ग्रोज बाय 40%, मनी ग्रोज बाय 40%. दोनों टर्म सेम ही है. अगर 40% से राइज होता है तो A विल बिकम 1.4p. तो दैट मीन्स दिस A इज 1.4 इंटू P, दैट इज इक्वल टू P 1 प्लस R कितना दिया है? 2%. सो 2/100 दैट रेज टू 40. तो फिर ये PP कट होगा. क्या निकालना है आपको? N निकालना है. तो फिर ये N होगा. तो फिर तुमको N निकालना है तो क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है. सो बाय द वे 1.4 इज इक्वल टू 1.02 दैट रेज टू N. तो लॉग ऑफ 1.4 दैट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.02 इज द वैल्यू ऑफ N. तो निकालो कितना होता है. लॉग कैसे निकालेंगे बोलो? 1.4 का लॉग कैसे निकालेंगे? रूट 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 15 टाइम्स दैट माइनस 1 दैट डिवाइडेड बाय 0.00070271718. आज रात भर ये बोलते रहने का क्या? 0.00007027178. करो आता क्या होता है. वैसे 1.02 का भी लॉग निकालो और मेरे को बोलो कि N कितना आया.
तुम्हारा आंसर क्या आया? 17 अप्रोक्सीमेटली हो गया, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या आया? 16.99, तो 17 ईयर्स। अभी वो ठीक है कि उन्होंने ही 17 दिया है, 16.9 दिया होता तो वो लिखते ना 17 की जगह। ओवर है कि नहीं? इजी। अभी आपको महसूस होगा जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स खत्म हो गए ना, आपको ये महसूस होगा कि पहले अटेम्प्ट में फेल होने का कोई वजह नहीं था। पेपर वॉज वेरी सिंपल, फिर भी फेल हो गए, मतलब तुमने बाकी लोगों से कुछ अलग करके दिखाया है। इसलिए यू शुड बी हैप्पी। समझा क्या? हाँ ठीक है, तो फिर अभी मेरे को बोलो, ये 7 से लेकर इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स होमवर्क ट्राई करेंगे क्या? कल हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारा देखो, तुम ही तुम्हारा देखेंगे, पर हम यहां सॉल्व करेंगे, फिर तुम वेरीफाई करेंगे। समझा क्या? तो करो, वेरी गुड। कल हम डिस्कस करेंगे एक एक प्रॉब्लम को, पर तुम्हारे पास अगर आंसर तैयार है तो फिर हमारा क्विकली वेरिफिकेशन होगा ना। तो चलो, तो करो, लेकिन सोने के पहले ये होना चाहिए।